A very good morning all of you. You most welcome in our online channel Ultra Laser Academy 2020. In previous video we discussed about various trophic labels of food chain. Today we will discuss about concept of food chain, types of food chain including grazing food chain, detritus food chain, some other food chain related concept such as biomagnification, bioamplification, bioconcentration, bioaccumulation. The concept of biomagnification with suitable example DDT and mercury. Bioconcentration, how it is related to the lethal of flora and fauna. Impact of bioconcentration, important cases of bioconcentration, how do the toxic chemicals affect the body of humans. It also includes the study of some toxic elements with their impacts including arsenic, nitrate, endosulfan, diclofenac sodium and potassium. In this session we will briefly discuss about what is the source of this toxic substance, how this toxic substance affect on the environment, and it also includes eutrophication, process of eutrophication and type of eutrophication. And at last we will discuss about food web, concept of food web. Thus today's session is very important for the student of high school, intermediate, BSc second year, BSc third year, MSc part 1 and MSc second year of bio and environmental science group. Its session is very important for all competitive exams. So friends, let's start today's session. First is food chain. What is the food chain? We know that food chain, जैसे food chain क्या होता है? Food chain is the sequence of various trophic label of food chain in which energy transfer from producer to consumer. Food chain क्या होता है? Food chain एक प्रकार का sequence होता है किसका? Various trophic label का. भिन्न भिन्न जो trophic label होते हैं उसका एक प्रकार का chain होता है जिसमें क्या होता है? In which energy transfer from consumer to producer to consumer, जिसमें क्या होता है? एनर्जी जो होता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ क्या होती है? ट्रांसफर होती है. अगर दूसरे शब्दों में हम देखें तो ए फूड चेन इज द सीक्वेंस ऑफ फीडिंग इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ इकोसिस्टम. किसी भी इकोसिस्टम के मध्य पाए जाने वाले जीवों के जो फीडिंग इंटरेक्शन होता है उसी को हम कहते हैं फूड चेन. तो द transfer of food energy in a series of various successive trophic label is called food chain. ऐसे भी food chain को हम define कर सकते हैं कि जो food energy होती है, food energy का एक सीरीज में different trophic label में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं food chain. The transfer of food energy through a sequence of eating and being eaten by the organism of an ecosystem is called food chain. Food chain में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है और दूसरे के द्वारा खाया जाता है, तो इसे भी हम फूड चेन ही कहते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ फूड चेन के बारे में थोड़ा समझते हैं. फूड चेन क्या होता है? जैसे आप जान रहे हैं कि सन जो है वो रेडिएंट एनर्जी को इमिट करता है. रेडिएंट एनर्जी आता है ग्रास के पास, यानी ग्रास हो गए जो प्रोड्यूसर होता है. प्रोड्यूसर उस रेडिएंट एनर्जी को क्या बनाता है? रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. अब वो जो ग्रास वो केमिकल एनर्जी है वो ग्रास को कोई जो है प्रोड्यूसर जो आपका प्राइमरी कंज्यूमर होता है वो कंज्यूम कर लेगा. जब प्राइमरी कंज्यूमर कंज्यूम कर लेगा तो वो केमिकल एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर के बॉडी में चली जाती है. अब प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर क्या करता है? कंज्यूम करेगा. सेकेंडरी कंज्यूमर की बॉडी में वो एनर्जी चली गई. सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्सरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर से फाइनल कंज्यूमर, और फाइनल कंज्यूमर अंत में क्या होगा? डिकम्पोज हो जाएगा. माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे नष्ट कर देंगे. इस तरह एनर्जी जो होती है एक ट्रॉफिक लेवल से
जैसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेबल यहाँ पे ग्रास हॉपर दिखाया, सेकंड ट्रॉफिक लेबल फ्रॉग दिखाया गया, थर्ड ट्रॉफिक लेबल स्नैक दिखाया गया, और फाइनल जो ट्रॉफिक लेबल यहाँ पे दिखाया गया है वो हॉक दिखाया गया। इस तरह क्या होता है, दो वो सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं फर्स्ट एक दूसरे को खा रहे हैं और एक दूसरे के द्वारा खाए जाते हैं। तो इस तरह एक सीरीज का निर्माण होता है, एक चेन का निर्माण होता है। इसी चेन को हम कहते हैं फूड चेन। कॉन्सेप्ट ऑफ फूड चेन में फिर से देखते हैं कि द फूड चेन इज ऑलवेज स्ट्रेट एंड प्रोसीड ए प्रोग्रेसिव सक्सेसिव स्ट्रेट लाइन। मतलब फूड जो चेन होता है उसमें जो एनर्जी जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो करती है। इसमें ये होता है कि फूड चेन इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन सोलर एनर्जी। अगर सोलर एनर्जी नहीं रहेगी तो पूरा का पूरा फूड चेन ढह जाएगा, यानी नष्ट हो जाएगा। इन ए फूड चेन देयर इज ए यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर। सन से प्रोड्यूसर तक जो एनर्जी का फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। अभी यहाँ पे यूजुअली 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल अकर इन फूड चेन। किसी भी फूड चेन में सामान्य रूप से 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल पाए जाते हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट 90% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट व्हेन इट ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार यह कहा जाता है कि जब एनर्जी का एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होता है तो उस दौरान 90% एनर्जी जो होती है हीट के रूप में बॉडी से लॉस हो जाती है। वो 90% एनर्जी लॉस होती है उसको डिफाइन करता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। केवल 10% जो एनर्जी होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होती है। ये होता है 10% लॉ ऑफ लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। टाइप्स ऑफ फूड चेन, मेनली फूड चेन 2 प्रकार के होते हैं। पहला ग्रेजिंग फूड चेन होता है, दूसरा होता है डिट्राइटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है? द फूड चेन विच स्टार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल इज कॉल्ड ग्रेजिंग फूड चेन। वह फूड चेन जो चरने वाले जीवों से प्रारंभ होता है उसे हम कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। डिकम्पोजर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट इन्वॉल्व इन ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन में डिट्राइटस जो सूक्ष्म जीव होते हैं और जो सड़े गले पदार्थों को खाने वाले जीव होते हैं वो इस प्रकार के यानी ग्रेजिंग फूड चेन में नहीं पाए जाते। ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो माने बड़े जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वही इन्वॉल्व होते हैं ग्रेजिंग फूड चेन में। ग्रेजिंग फूड चेन में सिर्फ बड़े ऑर्गेनिज्म ही इन्वॉल्व होते हैं। जैसे यहाँ पे 2 आपको इकोसिस्टम दिखाया गया है। पहला इकोसिस्टम आपका है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, दूसरा इकोसिस्टम आपका है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम आप देख रहे हैं कि प्लांट को जो है डियर क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं। डियर को कौन खा रहा है? लायन खा रहा है। और दूसरे में आप ग्रासलैंड इकोसिस्टम में देख रहे हैं ग्रास को कौन खा रहा है? ग्रास हॉपर खा रहा है। ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नैक खा रहा है। तो इस पूरे चेन में सभी जो है जीव, जैसे मान लो एक ट्रॉफिक लेवल दूसरे ट्रॉफिक लेवल से, जैसे ये होते हैं, ये आपके डियर हैं, वो लायन द्वारा खाए जा रहे हैं। जो इसमें ग्रास है, ग्रास हॉपर द्वारा खाया जा, ग्रास हॉपर किसके द्वारा खाया जा? फ्रॉग द्वारा खा रहा है, फ्रॉग स्नैक द्वारा खाया जा रहा है। तो सभी एक दूसरे को खा रहे हैं और एक दूसरे द्वारा खाए जा रहे हैं। तो इस तरह आपस में एक चेन का निर्माण होता है जिसे हम फूड चेन कहते हैं। देखिए ग्रेजिंग फूड चेन में आपको कहीं भी डिट्राइटस या जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं दिखाई दे रहे हैं। यानी इसमें सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बड़े ऑर्गेनिज्म ही पाए जाते हैं। दूसरा होता है आपका डिट्राइटस फूड चेन। द फूड चेन विच स्टार्ट फ्रॉम स्कैवेंजर यानी डेड ईटिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डिट्राइटस फूड चेन। वह फूड चेन जो स्कैवेंजर यानी डेड ईटिंग ऑर्गेनिज्म से प्रारंभ होता है उसे हम कहते हैं डिट्राइटस फूड चेन। ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन डिट्राइटस फूड चेन। देखिए ग्रेजिंग फूड चेन में था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व थे, लेकिन इसमें होता है यानी डिट्राइटस फूड चेन में होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं।
तो डेट्राइटस फूड चेन आप देख रहे हैं, इसमें लीफ लीडर दिखाया गया है, अर्थ वॉर्म दिखाया गया है, बर्ड्स दिखाई गई। तो ये जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्वॉल्व है। देख रहे हैं आप, एक दूसरे के खा रहे हैं। तो इस तरह एक फूड चेन होता है जो कि डेट्राइटस सड़े गले जीवों से प्रारंभ होते हैं, सड़े गली पत्तियों से प्रारंभ हो रहा है। यहाँ पे लीफ लीडर दिखाया है, तो सड़े गले से प्रारंभ होने वाले चेन को हम कहते हैं डेट्राइटस फूड चेन। तो इस तरह फूड चेन का कॉन्सेप्ट आपने देखा, फूड चेन को कितने प्रकार होते हैं उनको देखा, ये सारी चीज़ें आपने देखी। तो दोस्तों और भी देखते हैं सम अदर फूड चेन रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इसमें आप देखेंगे पहला है आपका बायोमैग्निफिकेशन, बायो एम्प्लीफिकेशन, बायोक्यूमुलेशन, बायो कंसंट्रेशन। ये 4 चीज़ें होती हैं इसमें। इस देखिए बायो जो आपका होता है, बायो एम्प्लीफिकेशन होता है और बायो एम्प्लीफिकेशन में बायोमैग्निफिकेशन होता है, वो मुख्य रूप से पाया जाता है बिटवीन ट्रॉफिक लेवल। मतलब ये एक प्रकार के पूरा फूड चेन में पाया जाता है। पूरे फूड चेन में मतलब फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, यानी बिटवीन द ट्रॉपिक लेवल में पाया जाता है। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के मध्य पाया जाता है। लेकिन अगर हम बायो एक्यूमुलेशन और बायो कंसंट्रेशन की बात करें तो ये मुख्य रूप से विद इन ट्रॉपिक लेवल में पाया जाता है, यानी एक ही ट्रॉपिक लेवल के मध्य यह पाया जाता है। तो शुरू करते हैं एक एक के बारे में स्टडी करना। पहला है आपका बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे हम। बायोमैग्निफिकेशन इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंस इन ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन which accumulate the body of consumer is called बायोमैग्निफिकेशन। यानी बायोमैग्निफिकेशन द्वारा ये होता है कि पेस्टिसाइड हो चाहे और भी टॉक्सिक सब्सटेंस हो, उसका किसी भी बॉडी में इंटर करके उस बॉडी को क्या कर देना, एक्यूमुलेट कर देना ही कहलाता है बायोमैग्निफिकेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल के रूप में दिखाया गया है। इसमें यह टॉक्सिक सब्सटेंस यानी कंटामिनेशन लेवल दिखाया गया है, यानी कंटामिनेंट कितना है। देखिए पहले ऑर्गेनिज्म देखिए फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में देखिए बहुत कम है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल में देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल में बहुत अधिक हो गया। जैसे ही फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में पहुंचता है इसका कंसंट्रेशन बहुत बढ़ के बहुत हाई हो जाता है। तो ये पाया जा रहा है बिटवीन द ट्रॉपिक लेवल, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में मुख्य रूप से हो रहा है। तो ये होता है बायोमैग्निफिकेशन, जिससे बॉडी में एक्यूमुलेशन तो हो रहा है, साथ साथ कंटामिनेशन लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बायोमैग्निफिकेशन के बारे में जानेंगे। रिचल कार्सन मेंशन्ड इन हर बुक द साइलेंट स्प्रिंग इम्पैक्ट ऑफ बायोमैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी मिशिगन लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। साइलेंट स्प्रिंग पब्लिश ऑन 27 September 1962 that shows the adverse environmental impact of pesticide। देखिए रिचल कार्सन ने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग में एक बहुत अच्छा केसेस दिखाया गया था कि बहुत डेंजरस केस था वो था आपका लेक मिशिगन। मिशिगन एक झील थी, झील जो नॉर्थ अमेरिका में स्थित थी। उस झील में जो बाहरी जो अगल बगल के उसके एरिया के जो केमिकल्स थे, जो पेस्टिसाइड था, वो एग्रीकल्चर के द्वारा या जो आपके घरों के जो केमिकल्स होते हैं सीवर नालों द्वारा आके उस लेक में इकट्ठा। धीरे धीरे वो लेक में इतने ज़्यादा मतलब कंसंट्रेशन हो गई केमिकल्स की कि उससे जो फाइटोप्लैंक्टन से जू प्लैंक्टन से वो इतने ज़्यादा बढ़ गए कि धीरे धीरे वो पूरी की पूरी लेक ही यानी पूरी की पूरी झील ही क्या हुई, समाप्त हो गई। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका एक एग्जाम्पल है बायोमैग्निफिकेशन का, जो कि रिचल कार्सन द्वारा दिखाया गया है उनकी बुक में साइलेंट स्प्रिंग जो उन्होंने लिखी थी, जिसमें अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। यहाँ पे बायोमैग्निफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो डीडीटी पर निर्भर करता है। जैसे डीडीटी की अगर कंसंट्रेशन बात करें, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल डीडीटी हम मुख्य रूप से यूज करते हैं फसलों में, जब एक इंसेक्टिसाइड के रूप में, जब इंसेक्टिसाइड जो कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए यूज़ करते हैं, तो जब वो इंसेक्टिसाइड उस पौधों पे पड़ता है बरसात के मौसम में, वो इंसेक्टिसाइड क्या होता है फ्लो करके कहाँ पहुँचता है, नदियों में पहुँचता है, तालाबों में पहुँचता है। नदियों तालाबों में जब पहुँचेगा
तो वहाँ पे पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, जो फाइटोप्लैंक्टन्स है, जो पौधे हैं, उन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पहुँचाता है। तो कैसे इम्पैक्ट पहुँचाता है? थ्रू द फूड चेन। अब देखते हैं, यहाँ पे दिया गया कंसंट्रेशन लेवल ऑफ डीडीटी इन पीपीएम पार्ट पर मिलियन में। जैसे देखिए, जब वो डीडीटी मान लो प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास पहुँचता है, जब प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास पहुँचता है वो डीडीटी, तो उसका कंसंट्रेशन क्या होता है? यहाँ पे 0.0, यहाँ पे 0.00003 ppm है। 0.3 ppm से जब प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाता है? जू प्लैंक्टन खाता है। जू प्लैंक्टन की बॉडी में अब ये इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गए, यानी 0.4 ppm हो गया। अब फिर जू प्लैंक्टन को छोटी से छोटी मछलियाँ जो होती हैं, यानी जिसे सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, वो कंज्यूम करेंगी, तो बॉडी में 0.5 ppm यानी कि इसका कंसंट्रेशन और भी बढ़ जाता है, 0.5 ppm होता है। अब छोटी मछलियों को उससे जो कुछ बड़ी मछलियाँ होती, कार्निवोरस फिशेस होती हैं, अगर वो खाएंगी तो उनके बॉडी में क्या होगा? कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, यानी 2 ppm होगा। अब उनको जो बड़ी बड़ी मछलियाँ होती है उनको खाएंगी तो उनके बॉडी में क्या होगा? कंसंट्रेशन धीरे बढ़कर 25 ppm हो जाएगा। तो इस तरह जो होता है, एक स्टेप से एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में क्या होता है? डीडीटी का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। इसलिए हमें कहा जाता है वैज्ञानिक रूप से कि आप लोग मुख्य रूप से छोटी मछलियों को ही खाएं, कंज्यूम करें, क्योंकि उनमें जो पेस्टिसाइड जो है उनकी मात्रा कम रहेगी, तो कम रहेगी तो हमारे बॉडी पर बहुत कम हार्मफुल पहुंचेगा। अब देखिए, मरकरी कंटामिनेशन में देखेंगे। मरकरी कंटामिनेशन भी एक प्रकार का बायो मैग्निफिकेशन का इशूज है या बायो कंसंट्रेशन का इशू है। जैसे मरकरी में देखिए, इंक्रीज द मरकरी लेवल इन फूड चेन। फूड चेन में जैसे ये आपका वाटर है, वाटर में मरकरी गया, मरकरी से फाइटोप्लैंक्टन में पहुंचेगा, फाइटोप्लैंक्टन से एक्वेटिक इंसेक्ट्स होते हैं उनके बॉडी में पहुंचेगा, उसके बाद फिश इंसेक्ट ईटिंग फिश में जाएगा, उसके बाद फिश ईटिंग फिश में जाएगा, उसके बाद फिश को कौन खाता है? ह्यूमन खाता है। ह्यूमन की बॉडी में धीरे धीरे इसका मरकरी का कंसंट्रेशन बढ़कर बहुत हाई हो जाएगा। तो इसलिए मरकरी का कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगा तो ये मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा लीथल हो जाएगा, यानी घातक हो जाएगा। दूसरा है आपका बायो कंसंट्रेशन। बायो कंसंट्रेशन क्या होता है? इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल टॉक्सिकेंट इन एन ऑर्गेनिज्म एट ए पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल। मतलब एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल में अगर टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं या केमिकल की मात्रा बढ़ जाती है, उसे ही हम कहते हैं बायो कंसंट्रेशन। देखिए, यहाँ पे दिखाया गया बायो कंसंट्रेशन और लीथल में संबंध दिखाया गया है, यानी घातकता और सांद्रता में संबंध दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए दिया है कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल एंड पॉल्यूटेंट। ये देखे, यहाँ से शुरू जब किया गया, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम था, धीरे धीरे ये कंसंट्रेशन लेवल बढ़ के बहुत हाई हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे कंसंट्रेशन इसमें बहुत कम है। देखें, छोटी छोटी जो बिंदु दिखाया है, कंसंट्रेशन लेवल इन जीवों में बहुत कम दिखाया गया है, तो यहाँ पे लीथलता कम दिखाई गई। जैसे कंसंट्रेशन इस फिश में देखो बढ़ा, तो यहाँ पे लीथलता भी बढ़ी, कंसंट्रेशन और बढ़ गया, लीथलता भी और बढ़ गई। अब देखिए, इस मनुष्य में जो बॉडी में पहुँचता है टॉक्सिक सब्सटेंस का कंसंट्रेशन यहाँ पर बहुत अधिक हो गया, पूरे बॉडी में हो गया, तो लीथलता यानी घातकता भी बहुत अधिक हो जाती है। तो इस तरह जो होता है, कंसंट्रेशन बढ़ने से लीथलता बढ़ती है, यानी बॉडी पर अगर कंसंट्रेशन यानी केमिकल का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, टॉक्सिकेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो हमारी बॉडी में क्या होगी? लीथलता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो इस तरह कंसंट्रेशन बढ़ने से मनुष्य की लीथलता भी बढ़ती जाती है। इम्पैक्ट ऑफ बायो कंसंट्रेशन। बायो कंसंट्रेशन से इम्पैक्ट क्या होता है बॉडी में? बायो कंसंट्रेशन से इम्पैक्ट हो जाता है, ओलिगोस्पर्मिया हो जाता है मेल में यानी लो स्पर्म सिक्रीशन इन मेल की बॉडी में जो स्पर्म होता है, यानी प्रोडक्टिविटी जिससे होती है, यानी स्पर्म घट जाएगा तो प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। दूसरा होता है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया भी एक डिजीज होता है जिसमें होता है सीमन विदाउट स्पर्म। जो बॉडी में जो सीमन निकलेगा उसमें स्पर्म ही नहीं रहेगा, यानी सीमन विदाउट स्पर्म हो जाएगा। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशनल या मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है, स्त्रियों में मासिक चक्र जो होता है,
यानी वो धीरे धीरे क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा, जो कि बॉडी जो कि प्रोडक्टिविटी यानी रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो ये अगर एबनॉर्मल हो जाएगा तो संतान उत्पन्न करने की क्षमता भी धीरे धीरे क्षीण होने लगती। इरेगुलर ओवुलेशन हो जाएगा, लॉस ऑफ फर्टिलिटी, फ्रेगिलिटी ऑफ बर्ड्स एग, किडनी फेलियर, ब्रेन एबनॉर्मलिटीज, इंडोमेट्रियोसिस यानी यूट्रस थिनिंग हो जाएगी। तो ये सारे जो होंगे आपके बॉडी में ये सारे डिसेबिलिटीज़ उत्पन्न होती है, जिसके कारण क्या होता है, हमारी संतान उत्पन्न करने की क्षमता नष्ट हो जाएगी, हमारा किडनी फेल हो जाएगा, या फीमेल में बात करें तो उनका यूट्रस यानी गर्भाशय की जो दीवारें होंगी पतली हो जाएंगी, उनका मासिक चक्र जो होगा गड़बड़ हो जाता है। इंपॉर्टेंट केस ऑफ बायो कंसंट्रेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। तो मीना माता के बारे में कुछ पहले जान लेते हैं। मीना माता डिजीज़ क्या है, इसके ये क्यों बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। तो देखिए, मीना माता की खोज सन 1956 ईस्वी में जापान के कुमामोटो प्रीफेक्चर के मीना माता शहर में हुआ था। इससे यह पता चला कि यह रोग चीसो निगम के रासायनिक कारखाने से निकलने वाला मिथाइल मरकरी जो था, वो जो होता सीवर के माध्यम से मीना माता नामक एक खाड़ी थी उसमें क्या हुआ, पहुंच गया। पहुंचने के बाद क्या हुआ, खाड़ी में पाए जाने वाले जो जलीय जीव थे जैसे मछलियाँ और भी फाइटोप्लैंक्टन से कंज्यूम कर लिया। कंज्यूम करने के बाद यह जो मिथाइल मरकरी था धीरे धीरे फूड चेन के द्वारा मानव तथा अन्य जानवरों के शरीर तक पहुंचा। अब मरकरी युक्त मछलियों के सेवन, आप जानते हैं कि जापान का मुख्य भोजन क्या है, मछलियाँ हैं। तो मछलियों के सेवन से ज़्यादातर ये जानवरों तथा मानव के शरीर में पहुंच गया। अब मछलियों के सेवन से जो था ज़्यादातर जो था जानवर प्रभावित हुए। जानवरों में इसका प्रभाव मुख्य रूप से बिल्लियों में देखा गया तथा बिल्लियों में एक गंभीर बीमारी जिसे डांसिंग कैट फेवर डिजीज के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में नृत्य बिल्ली बुखार कहा जाता है, यह रोग उत्पन्न हुआ। इस बुखार में बिल्लियों में जब यह बुखार हो जाता था तो बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा नाचने लगती थी। नाचने के उपरांत जो होता था अंत में बिल्लियों की मृत्यु हो जाती थी। मीना माता जो डिजीज़ था वो उसमें लगभग वर्ष 2001 में यह देखा गया कि लगभग इस रोग से 2265 व्यक्ति पीड़ित हो गए और उस दौरान 1784 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इससे प्रभावित लोगों को जो वहाँ की रासायनिक फैक्ट्री थी यानी चिशो कॉरपोरेशन था, उसने मुआवजे के तौर पर $86 मिलियन उसे देना पड़ा। और साथ ही जापान सरकार द्वारा वहाँ का जो प्रदूषण लेवल था उसको कम करने के लिए आदेश दिया गया। तो इस तरह मीना माता के बारे में मैंने कुछ चीज़ें जानी। अब देखते हैं मीना माता। मीना माता इज ए फेमस एग्जाम्पल ऑफ बायो कंसंट्रेशन। बायो कंसंट्रेशन का एक मुख्य फेमस एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। मीना माता डिजीज इज कॉज्ड बाय मरकरी द्वारा उत्पन्न होता है इन बे ऑफ जापान। मीना माता नाम का एक जापान में एक बे था, वो उसमें 1956 ईस्वी में देखा गया। इट केस्ड ड्यू टू रिलीज ऑफ मेथाइल मरकरी इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर फ्रॉम द चिशो कॉरपोरेशन केमिकल फैक्ट्री। वही कहा गया कि केमिकल फैक्ट्री थी चिशो कॉरपोरेशन की, उसे जो व्यर्थ पदार्थ निकलता था उसे वो सीवर द्वारा क्या करते थे, रिलीज कर देते थे, जिससे वो मीना माता की जो खाड़ी थी उसमें जाके इकट्ठा हो जाता था। इकट्ठा होने के बाद क्या होता था कि जब इकट्ठा हो जाता तो वो मछलियों द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता था। मछलियों के कंज्यूम से बॉडी शरीर में आ गया, मतलब मछलियों द्वारा जब कंज्यूम किया तो मछलियों को कौन खाता है, मनुष्य खाते हैं। मनुष्य की बॉडी में धीरे धीरे इंटर हुए। अब हम देखते हैं कि स्टेप ऑफ अफेक्ट ऑफ मरकरी इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में मरकरी कैसे इम्पैक्ट करता है यानी अफेक्ट करता है। पहले जब इनऑर्गेनिक मरकरी था, इनऑर्गेनिक मरकरी डिस्चार्ज हुआ एम्बियंट वाटर सेडिमेंट में। एम्बियंट वाटर सेडिमेंट से बायोमेथाइलेशन हुआ तो मरकरी मेथिल मरकरी का निर्माण हुआ। मेथिल मरकरी के बाद क्या हुआ, इसका बायो एक्यूमुलेशन हुआ तो इडिबल फिश
जो खाने वाली जो मछलियाँ, जो मनुष्य जिसे खाता मछली, उनकी बॉडी में पहुंच गया। एडिबल फिश से वो था एक्सपोजर के रूप में ह्यूमन बॉडी के, जब ह्यूमन एक्सपोज हुआ तो मेथिल मरकरी इन ह्यूमन बॉडी, वही मेथिल मरकरी ह्यूमन बॉडी में प्रवेश कर गया और प्रवेश करने के बाद वो ज़्यादातर मनुष्य की बॉडी में घातक हो गया। इम्पैक्ट ऑफ मिनामाता डिजीज़। मिनामाता डिजीज़ के कौन कौन से इम्पैक्ट थे? पहला है एटैक्सिया, लॉस ऑफ हियरिंग, मेंटल रिटार्डेशन, विजुअल लॉस, पैरालिसिस, मसल वीकनेस। ये सारे डिजीज इसमें उत्पन्न हो गए थे, जिसमें मुख्य रूप से आपका था साइकोएट्रिक डिस्टर्बेंस, साइकोएट्रिक डिस्टर्बेंस भी उत्पन्न हो गया, एटॉक्सिया हो गया, लॉस ऑफ हियरिंग, सुनाई कम देने लगा, मेंटल पागलपन होने लगा, विजुअल लॉस हो गया, देखने में, पैरालिसिस, बॉडी पैरालाइज होने लगी, मसल्स में कमज़ोरी उत्पन्न होने लगी। ये सारे डिजीज़ मुख्य रूप से मिनामाता से उत्पन्न हुए बॉडी में। दूसरा हम देखते हैं बात। तो दोस्तों सबसे पहले हम आर्सेनिक के बारे में जान लेते हैं। आर्सेनिक कंटामिनेशन होने से क्या होता था, इसकी क्या इशूज़ उत्पन्न हुई। तो आर्सेनिक एक विषैला तत्व है जो शरीर में अनेक दुष्प्रभाव उत्पन्न करता है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड यानी केंद्रीय भूमि जल बोर्ड्स की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत के 21 राज्यों में, जो भारत के 21 राज्य हैं, उसमें आर्सेनिक का जो स्तर है, भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का जो द्वारा निर्धारित जो मानक है, यानी 0.01 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक हो गया है, जिससे गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी बेसिन के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम के लोगों पर बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। भारत में आर्सेनिक का संदूषण सन 1983 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में दिखाई दिया, जिससे अधिक प्रभाव, बहुत अधिक विराट समस्या उत्पन्न हुई। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम यानी नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, या नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में आप समझ लीजिए 9.6 मिलियन पीपुल इससे प्रभावित हैं, असम में 1.6 मिलियन पीपुल और बिहार में 1.2 मिलियन, उत्तर प्रदेश में 0.5 मिलियन, झारखंड में 0.013 मिलियन लोग भूमिगत जल में जो पाया जाने वाला आर्सेनिक है उससे प्रभावित है। अगर विश्व स्तर पे हम देखें तो भारत में लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हैं, मैक्सिको में 4 लाख लोग, हंगरी में 20,000, बांग्लादेश में 5 करोड़ जो कि सबसे ज़्यादा है, अर्जेंटीना में 20 लाख, बोलीविया में 20,000, थाईलैंड में भी 1,000, रोमानिया में 36,000 लोग इससे प्रभावित हैं। तो अब ये तो था इसकी थोड़ी कुछ जानकारियाँ। अब शुरू करते हैं आर्सेनिक से, कंटामिनेशन से क्या दुष्प्रभाव हमारी बॉडी में पड़ते हैं या क्या इम्पैक्ट होते हैं। इम्पैक्ट ऑफ आर्सेनिक इन गंगेटिक प्लेन इंक्लूडिंग बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल दैट एराइजेस ब्लैक फुट डिजीज़। देखिए ये मुख्य रूप से गंगेटिक प्लेन में देखने को मिलता है, जिसमें मुख्य रूप से बांग्लादेश आता है, आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, जिसके द्वारा हमें एक बॉडी में ब्लैक फुट डिजीज़ उत्पन्न होता है। ब्लैक फुट डिजीज़ जिसमें क्या होता है, ब्लैक फुट यानी जो पैर होता है वो मुख्य रूप से काला हो जाता है, जिसे हम ब्लैक फुट डिजीज़ के नाम से जाने जाते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइन द वैल्यू ऑफ आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर इज 0.01 मिलीग्राम पर लीटर। WHO की गाइडलाइन के अनुसार ये कहा गया है कि आर्सेनिक की मात्रा जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें 0.01 मिलीग्राम होनी चाहिए। मतलब इतना होगा तो बॉडी में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पहुंचेगी, लेकिन अगर इससे अधिक बढ़ जाता है तो आपकी बॉडी में क्या होगा, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट उत्पन्न होने लगेगा, यानी इसके बहुत ज़्यादा कुप्रभाव उत्पन्न होने लगेंगे। तो इट इज़ वेल नोन दैट मेनी कंट्रीज कंटेन आर्सेनिक नेचुरली इंक्लूडिंग चाइना,
Chile, Argentina, USA, India, Mexico, Bangladesh and Thailand. In Bangladesh, tube well water contains more than 0.5 milligram arsenic. कितना 0.05 मिलीग्राम आर्सेनिक, जो कि WHO की गाइडलाइन से ज़्यादा है. दैट इज हैजार्डस, जो कि बहुत ज़्यादा घातक है. टॉक्सिसिटी ऑफ आर्सेनिक. आर्सेनिक टॉक्सिसिटी यानी आर्सेनिक किस प्रकार बॉडी में इम्पैक्ट पहुंचाता है. इसके दो इम्पैक्ट है. पहला होता है नॉन कार्सिनोजेनिक इम्पैक्ट होता है, दूसरा होता है कार्सिनोजेनिक इम्पैक्ट. यानी एक होता है कैंसर प्रोड्यूसिंग, दूसरा होता है नॉन कैंसर प्रोड्यूसिंग. नॉन कैंसर प्रोड्यूसिंग में देखते हैं हम, तो इसमें होता है कार्डियोवैस्कुलर या नॉन कार्डियोवैस्कुलर इम्पैक्ट करता है. ये कार्डियोवैस्कुलर और नॉन कार्डियोवैस्कुलर. लेकिन जो कार्सिनोजेनिक होता है उसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज उत्पन्न हो जाती हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल उत्पन्न होता है, एब्रेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन हो जाता है, अल्टर्ड डीएनए रिपेयर उत्पन्न होता है, डीएनए मेथाइलेटेड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उत्पन्न होता है, ट्यूमर प्रमोशन उत्पन्न हो जाता है. तो यानी क्रोमोसोम में चेंजिंग उत्पन्न होने लगती है, यानी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज उत्पन्न होने लगती. मॉडिफिकेशन ऑफ सेल जो होता है मॉडिफाई होने लगता है, जीन में कुछ चेंजेज होने लगते हैं, डीएनए में कुछ चेंज होने लगता है, और बॉडी में ट्यूमर यानी गांठ बनना शुरू हो जाती है, जिससे बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने लगता है और बॉडी हमारी क्या होती है, मृत्यु की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देती है. ये सिम्टम ऑफ आर्सेनिक. आर्सेनिक का जो सिम्पटम है मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा होता है. जैसे आपको बताया गया है कि यहाँ पे बांग्लादेश जो दिखाया गया, बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा सिम्पटम देखने को मिले हैं, जो कि उसकी मात्रा है बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा 5 करोड़ लोग इससे वर्ल्ड वाइड अफेक्टेड हैं. विश्व स्तर पे अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में लगभग 5 करोड़ लोग आर्सेनिक से प्रभावित हैं. वहीं पर अगर भारत की बात की जाए तो भारत में लगभग 10 लाख लोग, मैक्सिको में 4 लाख लोग दिखाई दे रहे हैं, अर्जेंटीना में देखा 20 लाख, बोलीविया में 20,000, थाईलैंड में 1,000, रोमानिया में 36,000, हंगरी में 20,000 लोग इस आर्सेनिक से प्रभावित हैं. कुछ सिम्पटम यहाँ पे दिखाए गए हैं. आर्सेनिक युक्त जल का सेवन करने से शरीर में अनेक सिम्पटम, जैसे त्वचा पर सफ़ेद काले धब्बे पड़ना, शरीर में कमजोरी उत्पन्न होना, सांस लेने में परेशानी, रक्तचाप यानी हाई बीपी हो जाती है, रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर, किडनी और फेफड़े का कैंसर होता है, जनन क्षमता में यानी जनन तंत्र में गड़बड़ी उत्पन्न होने लगती है, जैसे दिखाया गया है, नौसिया होने लगती है, वोमिटिंग उल्टी होने लगता है, डायरिया होने लगता है, कफ होने लगता है, हेडक होने लगता है यानी सिर दर्द होना चाहिए, कमजोरी उत्पन्न हो जाती है, लॉस होने लगता है. ये सारी डिजीज इसके सिम्पटम हैं जो कि आर्सेनिक द्वारा दिखाए गए हैं. देख रहे हैं आप बॉडी में कुछ दिखा है ना, चर्म रोग दिख रहा है आपको ना, जैसे बॉडी में जो दिख रहे हैं आपको काले और सफ़ेद धब्बे दिख रहे हैं ना, ये बॉडी में देख रहे हैं काले और सफ़ेद धब्बे दिखना शुरू हो गए हैं. तो ये काले और धब्बे जो होते हैं, तो बॉडी में ये काले सफ़ेद धब्बे दिखाई दे रहे हैं आपको, और बॉडी का जो एकदम रंग जो है एकदम बहुत बदरंग दिखाई देने लगता है आर्सेनिक के सिम्पटम प्रभाव से. और भी देखिए यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट दिखाया गया है, जैसे ब्रेन और नर्व पर भी इम्पैक्ट करता है यानी हार्मफुल पहुँचाता है. लंग्स में लंग्स कैंसर एराइज कर देता है. इंडोक्राइन जो अंतःस्रावी हमारी ग्रंथियाँ हैं, ग्रंथि का जो सिस्टम है उस पर भी ज़्यादा इम्पैक्ट पहुँचाता है. लीवर कैंसर उत्पन्न करने लगता है. प्रोडक्टिविटी सिस्टम में क्या करता है, लॉस करने लगता है यानी प्रोडक्टिविटी सिस्टम को क्या करता है, अफेक्ट करता है. स्किन कैंसर, मुख्य रूप से स्किन कैंसर भी उत्पन्न करता है. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को क्या करता है, जैसे हार्ट डिजीज उत्पन्न करता है, हाइपरटेंशन, हाई बीपी ये उत्पन्न करने लगता है. रीनल सिस्टम को यानी किडनी कैंसर उत्पन्न करने लगता है, यानी ब्लैडर या यूरिनरी जो ट्रैक होती है, हमारी मूत्र नली जो होती है, उसमें भी रोग यानी उत्पन्न करने लगता है. तीसरा हम देखते हैं जानते हैं कि नाइट्रेट से क्या साइड इफ़ेक्ट बॉडी पे उत्पन्न होते हैं.
यह रोग मुख्यतः नाइट जो आपके बॉडी में एक प्रकार का डिजीज़ होता है जिसे कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम उत्पन्न होता है। यह रोग मुख्य रूप से नाइट्रेट युक्त जल के सेवन से उत्पन्न होता है। इस रोग में यह रोग मुख्य रूप से छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा प्रभावी होता है, इसीलिए इस रोग को ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। इस रोग से ग्रसित बच्चों के जो रक्त की आरबीसी होती है, आरबीसी जो होती है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, उसमें पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी, यानी ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी कैपेसिटी होती है वो घट जाती है, जिससे बच्चों में सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न हो जाने लगती है और त्वचा धीरे धीरे नीली पड़ जाती है। यदि यानी नाइट्रेट या 50% से अधिक हो जाता है मिथेमोग्लोबिनीमिया, तो शिशु जो होता है कोमा में भी जा सकता है तथा शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो आगे देखते हैं कि इसके कौन कौन से सामान्य लक्षण हैं और कौन कौन से जो लक्षण जो उत्पन्न होते हैं इससे। तो ये लक्षण है आपके मुख्य रूप से बच्चों में कि त्वचा का रंग परिवर्तित होने लगता है, त्वचा में जलन उत्पन्न होने लगती है, स्तनपान में समस्या उत्पन्न होने लगती है, बच्चों के वजन में कमी उत्पन्न होने लगती है और सांस लेने में समस्या, उल्टी दस्त शुरू हो जाती है बच्चों में। तो देखते हैं यहाँ पे स्लाइड में। तो नाइट्रेट इज ए टॉक्सिक केमिकल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर। इट इज वेरी हैजार्डस स्पेशली बेबीज, छोटे बच्चों में मुख्य रूप से होता है। दैट एराइजेस ए वेरी हैजार्डस डिजीज इज कॉल्ड एज ब्लू बेबी सिंड्रोम, यानी मिथेमोग्लोबिनीमिया, दैट डिक्रीज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है उसको क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। तो दोस्तों एक लेटेस्ट चौथा हम देखते हैं बायो कंसंट्रेशन से संबंधित जो इथिक्स एक प्रकार का केस दिखाया गया है। तो बायो कंसंट्रेशन का क्या इम्पैक्ट होता है इंडोसल्फान। इंडोसल्फान जो होता है, इंडोसल्फान का एक बहुत लेटेस्ट अभी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखा गया केरला में इसका क्या इम्पैक्ट देखा गया इसके बारे में थोड़ा पहले जान लेते हैं, उसके बाद इससे अच्छी तरह। केरला में इंडोसल्फान का एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट देखा गया कि केरला में इंडोसल्फान के छिड़काव से क्या साइड इफ़ेक्ट बच्चों पर, वहाँ के रहने वाले निवासियों पर पड़ा। तो इंडोसल्फान के बारे में पहले जानते हैं। इंडोसल्फान एक प्रकार का कीटनाशक है। केरला में इसका छिड़काव कपास, काजू, चाय, फलों तथा तंबाकू पर लगने वाले कीट जैसे व्हाइट फ्लाई, एफिड, बीटल्स, वार्म से बचाने के लिए उसका छिड़काव किया गया। लेकिन फसलों को इन कीटों से तो बचा लिया गया, लेकिन बाद में इंडोसल्फान का बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखा गया। इंडोसल्फान धीरे धीरे वाटर के साथ फ्लो करके नदियों में और वहाँ की मिट्टी में पहुँच गया। अब वो फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला द्वारा मानव तो जानवरों के लिए बहुत ही घातक साबित हुआ, जिससे मानव तथा अनेक जो बच्चे थे वहाँ पे उनमें अनेक डिसऑर्डर उत्पन्न हुए देखने को मिले, जैसे फिजिकल डिसऑर्डर जो भी दिखने को, जैसे कैंसर हुआ, बर्थ डिसऑर्डर उत्पन्न हो गए, डैमेज द ब्रेन, नर्व सिस्टम, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने यानी सर्वोच्च न्यायालय ने सन 2015 में इंडोसल्फान के घातक प्रभावों के कारण इसे बैन कर दिया। तो शुरू करते हैं इंडोसल्फान के बारे में जानना और चीज़ें। इंडोसल्फान it is the latest information of bioconcentration of heavy use of indosulfan on cashew nut plants on Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Kerala that affect on pregnant women and arise the birth defect newborn baby। जो बच्चे थे वहाँ पे जब चेस्टनट्स के यानी काजू के पौधों पे ज़्यादातर मुख्य रूप से इन पेस्टिसाइड का छिड़काव किया गया, तो वहाँ पे जो वुमेन थी, जो प्रेग्नेंट वुमेन थी, उनसे जो बच्चे उत्पन्न हुए उनमें बर्थ डिफेक्ट उत्पन्न हुए, यानी बच्चों में कुछ डिसेबिलिटीज़ उत्पन्न हुई। तो
देखते हैं उनके बाद क्या हुआ। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि केस स्टडी ऑफ एंडोसल्फान इन केरला। केरला में केस स्टडी दिखाई गई। तो देखिए ये डिफेक्ट, ये बच्चा जो पैदा हुआ है इसकी बॉडी में कुछ डिफेक्ट, इसमें 4 ही अंगुलियां पाई गई। तो ये इसलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज में है भी। ये एंडोसल्फान क्यों बॉडी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, इसलिए देखिए इसे मुख्य रूप से साइलेंट किलर का नाम दिया गया है। साइलेंट किलर का मतलब होता है ये मुख्य रूप से धीरे धीरे क्या होता है, बॉडी मनुष्य आदमियों को, यानी वहाँ के बच्चों को, वहाँ के जो निवासी हैं उनको धीरे धीरे वो नष्ट कर रहा है। इसीलिए इसे कहा गया बैन द एंडोसल्फान वर्ल्ड वाइड। विश्व स्तर पे इसे बैन करने की बात कही गई। इसमें देखिए आपको कई फिगर दिखाए गए। इन फिगरों में अनेक प्रकार की डिसेबिलिटीज दिखाई गई हैं बच्चों में। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, यहाँ पे दिया गया स्टॉप किलिंग आवर चिल्ड्रन। हमारे बच्चों को मारने से रोकिए, यानी हमारे बच्चों को मत मारिए। इसका मतलब है बैन एंडोसल्फान। वहाँ के न्यूज में बहुत ज़्यादा था कि बैन एंडोसल्फान। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय में 2015 में एंडोसल्फान को बैन कर दिया। इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने पड़ी। तो इम्पैक्ट कुछ रूप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट इनके साइड इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं आपको। अब तो दोस्तों डाइक्लोफेनिक सोडियम और पोटेशियम ये भी बहुत ही ज़्यादा इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा 1992 से 2007 के मध्य देखा गया। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं, ये क्या है, ये कैसे। देखिए डाइक्लोफेनिक सोडियम जो होता है एक प्रकार का पेन किलर है। यह वर्ष 1990 के बाद भारत, नेपाल, पाकिस्तान में लगातार गिद्धों की संख्या में 99% गिरावट देखी गई। तो वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार यह पता चला कि पशु चिकित्सा में यूज होने वाली दर्दनाशक, ज्वरनाशक दवा जो डाइक्लोफेनिक सोडियम या पोटेशियम है, उसको जब हम उसको इंजेक्ट करते हैं पशु की बॉडी में, तो डाइक्लोफेनिक सोडियम से तो पशुओं के शरीर में जो होता है वो बुखार उनका जो होता है, उनके पेन जो होता है दूर हो जाता है, लेकिन उनकी बॉडी में क्या हो जाता है, वो जाके संचित हो जाता है। जब पशुओं की मृत्यु होती है तब उनके शव को क्या करते हैं, पहले होता था कि उनको शव को फेंक दिया जाता था। तो अब उनको फेंक दिया, उनके शव को फेंकने के बाद जो गिद्ध थे वो उनको खाते थे। गिद्धों के द्वारा जब खा लिया जाता था तो डाइक्लोफेनिक सोडियम और पोटेशियम जो होता है का जैव संचयन यानी बायो कंसंट्रेशन के कारण गिद्धों के शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ा, जिससे उनकी लीवर, किडनी फेल हो गई और उनकी मृत्यु होने लगी। जिससे गिद्धों ने अपनी इन प्रजातियों को नष्ट होने को देखकर कुछ गिद्ध जो है माइग्रेट हो गए और कुछ जो होते हैं पूर्ण रूप से यहाँ धरती से विलुप्त हो गए। जैसे कुछ गिद्ध, आपको कुछ गिद्ध की प्रजातियां मैं बताता हूँ जो कि धरती से विलुप्त हो गई है, यानी कई प्रजातियां भारत से मुख्य रूप से भारत से विलुप्त हो गई है। जैसे व्हाइट बैक्ड वल्चर है, स्लेंडर विल्ड वल्चर है, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, ये 3 प्रजातियां हैं मुख्य रूप से धरती से विलुप्त हो गई। इन कुप्रभावों को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2008 में पशु चिकित्सा के प्रयोग में लाई जाने वाली डाइक्लोफेनिक सोडियम या पोटेशियम दवा पर प्रतिबंध लगा दिया। इस तरह जो होता था डाइक्लोफेनिक सोडियम जो होता था बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पावरफुल साइड इफेक्ट दिखाता है। तो देखते हैं यहाँ पे, डाइक्लोफेनिक सोडियम इज ए पेन किलर मेडिसिन used in animal. A survey of December 2017 reported that population of vulture declined up to 97 to 99% between 1992 to 2007 from India, Nepal and Pakistan due to heavy use of diclofenac sodium and potassium for pet animal as a painkiller. तो 1992 से 2007 के मध्य लगातार भारत, नेपाल, पाकिस्तान में 97% 99% में गिरावट देखा गया, जो कि एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था 2007 में। ऐसा उसमें कहा गया है कि इतनी ज़्यादा वल्चर में गिरावट हो गई। यह मुख्य रूप से गिरावट देखी गई थी पशु चिकित्सा में उत्पन्न होने वाली यूज की जाने वाली जो डाइक्लोफेनिक सोडियम और पोटेशियम दवा है,
वो पेन किलर के रूप में पशुओं को दी जाती थी। इसीलिए पशुओं की बॉडी में ये जो दवा है वो जाके बायो कंसंट्रेट हो जाती है, यानी बायो कंसंट्रेशन हो जाता था, यानी इकट्ठा हो जाती थी। मरने के बाद वो वल्चर की बॉडी में जाती थी और वल्चर की बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मफुल पहुंचाती थी और नष्ट कर देती थी उनके किडनी लीवर को, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई और उनकी पॉपुलेशन में गिरावट उत्पन्न हुई। तो दोस्तों यहाँ पे डाइक्लोफेनिक देखा गया। डाइक्लोफेनिक के बारे में कहा गया इन 1992 में डाइक्लोफेनिक इंट्रोड्यूस इन द कंट्री में 1991 ईस्वी में ये इंट्रोड्यूस हुआ। एनिमल इंजेक्टेड इन द डोज के रूप में दिया गया। वही सेम चीज़ें कही गई है कि कब कितनी गिरावट हुई, कैसे गिरावट हुई इनके जीवों के शरीर में। देख रहे हैं आपको यहाँ पे दिखाया गया 2018 में, यहाँ पे देखिए 2005 में दिखाया गया, 2005 में 2647, उसके बाद 2007 में 1431, उसके बाद 2010 में दिखाया गया 1065, उसके बाद 2012 में 1043, 999 और अंत में 820 ही इनकी जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन बची। यानी वल्चर की पॉपुलेशन में लगातार गिरावट देखी गई ईयर बाय ईयर। देखिए यहाँ पे दिखाया गया किस तरह इंजेक्ट किया जाता है। बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद इसमें इनके बॉडी में पहुंचता है डाइक्लोफेनिक सोडियम, जिसके कारण कि पशुओं की जो वल्चर थे उनकी जातियों में गिरावट उत्पन्न हुई, यानी वो उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे नष्ट हो गई। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि किस प्रकार जो होता है वल्चर जो होते हैं पशुओं के शरीर के फ्लीस यानी मांस को खाते हैं और खाने के बाद उनके बॉडी में इम्पैक्ट फुल पहुँचाता है। यहाँ पे क्या है डाइक्लोफेनिक वार्निंग दिखाया गया। डाइक्लोफेनिक इज हैजार्डस फॉर द vulture that affect that fail the kidney and liver of through the several ways। इम्पैक्ट ऑफ डाइक्लोफेनिक एंड सोडियम, ये इम्पैक्ट कैसे करता है। डाइक्लोफेनिक सोडियम जो होता है बायो कंसंट्रेशन द्वारा इम्पैक्ट पहुंचाता है, जैसे डिस्ट्रॉय द किडनी, डिस्ट्रॉय द लीवर, देयरफॉर आल्सो द बिकम डाई एंड thus the population of vulture will be डिक्लाइन धीरे धीरे होती गई। यहाँ पे कुछ और डिजीज़ दिखाए गए हैं। वो डिजीज़ जो होता है डिजीज़ दिखाया गया उनके उनसे किनके द्वारा उत्पन्न होते हैं, उनके कौन से एजेंट हैं वो दिखाया। जैसे आर्सेनिक है, आर्सेनिक से द्वारा जल में आर्सेनिक है तो ब्लैक फूड डिजीज़ उत्पन्न होने लगता है। मरकरी है तो मीना माता डिजीज़ उत्पन्न होने लगता है। फ्लोराइड टॉक्सिसिटी है तो नाक नी सिंड्रोम उत्पन्न होने लगता है। नाइट्रेट टॉक्सिसिटी से ब्लू बेबी सिंड्रोम उत्पन्न होने लगता है। जिंक के द्वारा ऑक डिजीज़ उत्पन्न होने लगता है। आर्सेनिक से डर्मेटाइटिस डिजीज़ उत्पन्न होने लगता है। तो ये डिजीज़ हैं और ये इसके एजेंट हैं, ये मुख्य रूप से बॉडी पे बहुत ज़्यादा हार्म्स पहुँचाते हैं। दूसरा नेक्स्ट है आपका बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है? इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट फ्रॉम इन्वायरमेंट फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ फूड चेन दैट एक्यूमुलेट ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये मतलब होता है कंसंट्रेशन बढ़ने से बॉडी में एक्यूमुलेशन फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, पहले ऑर्गेनिज्म जो पहला ऑर्गेनिज्म होता है यानी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें एक्यूमुलेशन हो जाता है, इसे ही कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन में दिखाया गया, देखें आप देख रहे हैं यही फिश है। फिश में पहले ऑर्गेनिज्म में नहीं, बहुत छोटी है, कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ उसकी बॉडी में भी ग्रोथ हो रहा है यानी एक्यूमुलेशन बढ़ रही है। तो कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ इसमें क्या हो रहा है, उनकी बॉडी में एक्यूमुलेशन उत्पन्न हो रहा है। यानी ये एक ही ट्रॉपिक लेवल की फिशेस दिखा रहे हैं। देखो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ही है, पूरा का पूरा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, लेकिन इसमें सिर्फ मछलियों के कंसंट्रेशन बॉडी में जो टॉक्सिक कंटामिनेंट लेवल है उनके आधार पर उनके बॉडी में एक्यूमुलेशन दिखाया गया है। तो ये दूसरा है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है आप जानते हैं, पहले टाइम में मैंने बताया कि इंक्रीज द कंसंट्रेशन लेवल बिटवीन द ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन, यही है। तो फ्रेंड अगला जो आपका फूड चेन से संबंधित टॉपिक है वो है यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन क्या? यूट्रॉफिकेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस, एक प्रकार की प्राकृतिक अभिक्रिया प्रोसेस होती है, डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड यूट्रोफस। यूट्रोफस एक ग्रीक वर्ड है, उसे डिराइव विच मीन्स वेल नरिश्ड और इनरिचमेंट। मतलब ये होता है अच्छी तरह पोषण करना। यूट्रॉफिकेशन, यू मीन्स वेल, ट्रॉफिकेशन मतलब नरिशमेंट पोषण करना यानी सुपोषण, इसे हिंदी में कहते हैं सुपोषण। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इंक्लूडिंग नाइट्रेट, फास्फेट, सल्फेट,
ड्यू टू नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक रीजन दैट लीड्स एक्सेसिव ग्रोथ इन फ्लोरा एंड फौना resulting high productivity is known as यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन के द्वारा ये होता है कि उनके बॉडी में जो होता है नाइट्रेट, फास्फेट, सल्फेट का जो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिससे जो जलीय जो जीव होते हैं उनकी बॉडी में जो होती है ग्रोथ होती है। ग्रोथ के कारण क्या होते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसे ही कहते हैं हम यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का जो प्रोसेस होता है, जैसे आप जानते हैं कि हम फर्टिलाइज़र को यूज करते हैं एग्रीकल्चर में। फर्टिलाइज़र रन ऑफ जल के द्वारा भी बह के तालाबों नदियों में पहुंच जाता है, या लीचिंग द्वारा भी तालाबों नदियों में पहुंच जाता है। नदियों में पहुंचने के कारण क्या होता है, जो वहाँ पे पाए जाने एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन्स हो, तो उनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है। ग्रोथ होने के कारण प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। यही होता है प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन। यहाँ पे दिखाया गया और भी यूट्रोफिकेशन है। नाइट्रेट कैसे नाइट्रोजन फास्फेट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण क्या होता है, एल्गी जो है, एल्गी के कारण बढ़ जाए। यूट्रोफिकेशन जो होता है उसका हानि भी है। एल्गी बढ़ जाएगी तो जलीय जीव हो जाएंगे, वो श्वसन नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीजन जो का डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह क्या होता है, यूट्रोफिकेशन बॉडी में बहुत वहाँ जलीय जीवों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। टाइप्स ऑफ यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ओलिगोट्रॉपिक, दूसरा होता है मीजोट्रॉपिक होता है, तीसरा होता है यूट्रॉपिक। ओलिगोट्रॉपिक मीन्स होता है लो न्यूट्रिएंट या लो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी स्टेटस, यानी इसमें बहुत कम न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। दूसरा मीजो मतलब मॉडरेट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड, यानी मॉडरेट प्रोडक्टिविटी स्टेटस होता है। तीसरा होता है यूट्रॉपिक, यानी रीच न्यूट्रिएंट लेवल एंड हाई प्रोडक्टिविटी स्टेटस, यानी हाई प्रोडक्टिविटी। इसमें हाई प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है बाय द नाइट्रेट, सल्फेट एंड फास्फेट द्वारा। अब अगला टर्म्स है आपका फूड वेब। फूड वेब क्या होता है, ए ग्राफिकल मॉडल शोइंग द इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस फूड चेन टू फॉर्म ए वेब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड फूड वेब। फूड वेब क्या होता है, जो डिफरेंट प्रकार के फूड चेन होते हैं, उन फूड चेन को एक इंटरकनेक्शन करना, इंटरलॉकिंग करना, इंटरलॉक करके एक जाल जैसी संरचना का निर्माण करना, उसे कहते हैं फूड वेब। इंटरलॉकिंग पैटर्न ऑफ वेरियस फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। फूड वेब को इंटरलॉकिंग पैटर्न होता है। फूड वेब क्या होता है, इंटरलॉकिंग पैटर्न ऑफ फूड चेन। फूड चेन का इंटरलॉकिंग पैटर्न होता है। कॉन्सेप्ट, ए फूड वेब इज फॉर्म बाय इंटरलॉकिंग चेन। फूड चेन के इंटरलॉकिंग से होता है। ए फूड वेब प्रोवाइड अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ फूड अवेलेबिलिटी। एक अल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड करता है फूड के भोजन के लिए। यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया गया फूड। देखिए यहाँ पे आप जैसे ग्रास देख रहे हैं, कॉर्न का प्लांट, कॉर्न के प्लांट को ग्रास खाए, ग्रास हॉपर को फ्रॉग भी खाता है, फ्रॉग को रैट, ग्रास हॉपर को रैट भी खाता है। तो इस तरह रैट को स्नैक खाया गया, स्नैक जो होता है फ्रॉग को भी खाता है। ये दो सारे जो होते हैं, अब रैट को वुल्फ भी खाता है, रैट को ईगल भी खाता है। अब इस पाइथन यानी स्नैक जो दिखाया गया इसको ईगल भी खा सकता है। तो इस तरह क्या होता है, इंटरकनेक्शन द्वारा क्या होता है, एक जाल जैसी संरचना का निर्माण होता है। इस जाल जैसी हम संरचना को हम क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक। आपने आज की वीडियो को पूरा अच्छी तरह पढ़ा। अगली वीडियो में हम फिर से उपस्थित होंगे नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।